Hello everyone, let's continue with the algorithm. And in algorithm, we were discussing about binary search and algo for binary search already we have seen in the last lecture. And finally, we got the recurrence relation for binary search. For binary search, we got the recurrence relation as T of n equal to equal to 1, or we can say order of 1. Just a minute. Here it is order of 1 if n equal to 1, means it will take order of 1 time if n equal to 1, else it will take a t of n by 2 plus a c time. Okay, if n is greater than 1, right? So here we'll have to simplify this recurrence relation, that t of n, that is equal to t of n by 2 plus c. We need to solve this recurrence relation. I'm not going to solve this recurrence relation because already you know the substitution method, and master method we'll discuss later. That will be much easier than that substitution method. So इसको आप खुद ट्राई करना कैसे सॉल्व करेंगे, राइट? फाइनली what will be the time complexity here? So time complexity, we can say, after solving this one we'll get a order of okay, it is 2t, it is t of n by t, it is a log I think log of n time, right? If we simplify this one, what time it will take? Just a minute. So here n power log of 1 base 2, and here it is constant. So if we take this one, it is 1 and constant log n. Okay, so finally worst case, no, it is not the order of n time, because because if we solve this one through the master method, because we have not done this master method in this class, offline class में हमने कर लिया है, बट मैं एक बार के लिए जस्ट कुछ कैंडिडेट्स जो ऑफलाइन वाले हैं जो कनेक्टेड हैं उनको पता चल जाएगा कि n की पावर क्या करेंगे, log ऑफ 1 बेस 2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये n पावर 0, और n पावर 0 मीन्स इट इज़ 1, और 1 क्या होता है, दैट इज़ कांस्टेंट, और ये भी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको क्या करेंगे, log n से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? तो फाइनली क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ log ऑफ n, right? So binary search will take order of log n time, but linear search take the order of n time, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या टाइम लेगी, इन वर्स्ट केस इट विल टेक द ऑर्डर ऑफ log n टाइम, बट लीनियर सर्च विल टेक ए ऑर्डर ऑफ n टाइम इन वर्स्ट केस. Okay, is it clear or not? Clear? Okay. Okay, fine. Now what will be the best case in case of binary search? In case of binary search, what will be the best case? So here best case is what, it is a order of 1. How it is order of 1? So simply we can say, if this is an array, right, and these are the element in the array, and we are looking for the element. So what we'll do, in case of binary search we'll go to the middle, ठीक है? तो फर्स्टली कहाँ पे जाएंगे, मिडल पे जाएंगे, और मान लीजिए ये जो मिडल पे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, वो एलिमेंट हमारा क्या था जिसको हम सर्च कर रहे थे, राइट? सो x इक्वल टू दिस एलिमेंट, मान लीजिए मिडल पे क्या है, 50 है, एंड वी आर लुकिंग फॉर 50.
सो एक ही ऑर्डर ऑफ वन टाइम में क्या हो गया, हमें मिल गया। बिकॉज इन एरे देर विल बी द बेस एड्रेस, विद द हेल्प ऑफ दैट वन वी कैन डायरेक्टली गो टू द मिडल, डायरेक्टली मिडल पे जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ वन। सो इन बेस्ट केस इट विल टेक ऑर्डर ऑफ वन टाइम। Okay, then what about the next one, worst case? In worst case it will take order of log n time, because already we have simplified this recurrence relation. So it will take order of, okay, for best case I can apply omega, just a minute, here it is omega of 1, here it is order of log n. And what about the average case? So average case, we can say that is in between these two, best case and worst case. So it is again order of log n, right? So average case that is again order of log of n. Okay, so this is what the time complexity for the binary search. Yes, is it clear to all? Okay, fine. Next thing we can say that binary search is a partial divide and conquer problem. Binary search क्या है? Binary search is a partial divide and conquer problem, right? It is partial divide and conquer problem because there is no combined process in BST, right? So why? Because there is no combined process, process in BST. वाई इट इज़ नॉट ए कंबाइंड प्रोसेस? बिकॉज हमने एल्गोरिथम में देखा था कि एक पार्ट के कितना चल रहा था, टी ऑफ एन बाई टू टाइम्स, सेकेंड पार्ट भी क्या था, टी ऑफ एन बाई टू टाइम्स। बट इन दोनों में से हमें क्या करना था, सिर्फ एक पार्ट को ही चलाना था, या तो इफ कंडीशन ट्रू है तो वो वाला पार्ट, अदरवाइज एल्स दूसरे वाले पार्ट पे जाना था, राइट। तो एक बार में हम कहाँ पे जाते हैं, मिडल पे गए, मिडल में अगर मिडल पे गए और जो सर्च करना है एलिमेंट एक्स, वो अगर स्मॉलर है तो लेफ्ट सब एरे पे फिर से अप्लाई करेंगे, है ना। और अगर ग्रेटर है तो राइट सब एरे पे क्या करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे। ये सेम एल्गोरिथम बाइनरी सर्च फिर से अप्लाई करेंगे, है ना। तो बाइनरी सर्च अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या कर रहे हैं, एक ही साइड पे तो अप्लाई कर रहे हैं ना। फिर फर्दर क्या करेंगे, फर्दर इसमें भी डिसाइड करेंगे यहाँ पे अप्लाई करें या यहाँ पे, तो एक साइड पे ही क्या कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं। Okay, that's why it is what partial divide and conquer problem. So this point is clear or not? Okay, fine. And next point you can note down that binary search is always creating balanced binary search tree, right? So binary search always create balanced binary search tree, ठीक है। binary search always create balanced binary search tree, BST, right? Balanced BST, it goes middle element always, because यहाँ पे क्या होगा, it goes to the middle element always, right? तो लेफ्ट साइड में क्या होंगे, हाफ एलिमेंट होंगे और
राइट सब एरे में भी हाफ एलिमेंट होंगे। फर्दर क्या कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हाफ होंगे, यहाँ पे हाफ होंगे, राइट। तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, डिवाइड करते जाएंगे, राइट। तो ये क्या बनेगी, इट बिकम्स द बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। ओके, सो दिस पॉइंट ऑल्सो क्लियर और नॉट? Clear? Okay, fine. Now let's see some of the questions. Okay, just a minute. Okay, let's see the question. Here, input is given as a sorted array of n element, a sorted array, sorted array of n element, sorted array of n element, and we are looking for the output. Output is find two element a and b. Find two element a and b. Find two element a and b such that a plus b that is greater than 1000. A plus b that is greater than 1000. So option A, here it is order of n time. It will take order of n time to doing this task. Okay. And option B, here it is order of log n time. And option C, it will take order of one time. And option D, it is none. ओके, सो विच वन इज करेक्ट? ठीक है, तो इनपुट में क्या दे रखा है, इन इनपुट ए सॉर्टेड एरे ऑफ एन एलिमेंट्स, एक एरे दे रखा है जिसमें क्या होंगे, एन एलिमेंट्स होंगे। और आउटपुट क्या चाहिए, आउटपुट इज फाइंड आउट टू एलिमेंट्स ए एंड बी सच दैट ए प्लस बी दैट इज ग्रेटर देन 1000। तो दो एलिमेंट अपने को सर्च करने हैं और उसमें क्या होगा, ए प्लस बी को ऐड किया जाए दो एलिमेंट्स को, तो वो क्या होगा, दैट दैट शुड बी ग्रेटर देन 1000। ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1000। देन what should be the time complexity for that, right? How much time it will take? Okay, order of n time. ओके, थोड़ा आइडिया और दे देता हूं मैं। मान लीजिए एक एरे दे रखा है कुछ इस तरह का, here it is 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 एंड अज्यूम 900। ओके, तो ये एरे दे रखा है, हियर इंडेक्स 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 and 10, right? These are the elements given. या इट मे बी पॉसिबल इन ऑर्डर ऑफ एन टाइम. क्या इससे लेसर टाइम में भी पॉसिबल हो सकता है? इज इट पॉसिबल इन लेसर टाइम? ऑर्डर ऑफ एन टाइम से भी लेसर टाइम लग सकता है क्या इसको करने में? Okay, how it is possible in order of one time, Mukesh? Okay, that may be. Yes, what about others? क्या ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन में भी काम चल जाएगा या ऑर्डर ऑफ वन में हो सकता है? लेट्स सी. सो हियर there are n elements and we are looking for two elements, that is a and b, such that a plus b that should be greater than 1000, right? Then order of n टाइम कैसे लग सकता है, कैसे सोल्व किया जा सकता है ऑर्डर ऑफ n टाइम में? मान लीजिए कि ये इंडेक्स i हो गया, ये इंडेक्स क्या हो गया, j हो गया. तो इंडेक्स i का मतलब क्या हो गया, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1. तो पहले क्या किया, 1 एंड 200 इनको ऐड करके देखेंगे, 300 नहीं हो रहा. फिर क्या करेंगे, फिर ये वाला एलिमेंट और 300 ये चेक करेंगे, है ना? मान लीजिए कि 100 और 200 को ऐड करके देखेंगे, फिर 100 और 300 को करेंगे तो 400 और 100 को करेंगे, इसके साथ चेक करके देखेंगे, है ना? फिर 500 के साथ चेक करके देखेंगे, 6 के साथ चेक करके देखेंगे, 700 के साथ चेक करके देखेंगे, 800 के साथ चेक करके देखेंगे, 900 के साथ चेक करके देखेंगे. तो ऑलमोस्ट कितने n-1 कंपेरिजन लग जाएंगे, है ना? इसके साथ चेक किया, इसके साथ इन सब के साथ चेक किया, तो ऑलमोस्ट कितना लग गया, n-1 कंपेरिजन. मीन्स इट विल टेक ऑर्डर ऑफ n टाइम, राइट? तो एक फॉर लूप चलेगा, ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा. ठीक है जी, इट इज़ पॉसिबल. क्या इससे लेसर टाइम में हो सकता है? या दैट मे बी पॉसिबल. कैसे? वी कैन अप्लाई द बाइनरी सर्च. तो बाइनरी सर्च का मतलब मिडल पे जाएंगे, राइट? तो 10 + 1 दैट इज 11, 11 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग मीन्स 5 अज्यूम. ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिडल. अब जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, सर्च कितना, ग्रेटर देन 1000, ग्रेटर देन 1000 चाहिए, तो क्या चाहिए, क्या करना पड़ेगा, राइट वाली सब ट्री में जाना पड़ेगा, है ना? और ये स्टार्टिंग एलिमेंट है, इसको मान लिया मैंने, अज्यूम कर लिया. ओके, ये 4 है क्या? ओके, दिस इज व्हाट 4 और ये 5. ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, 500 और एक एलिमेंट ये वाला उठा रखा है इंडेक्स 1 पे जो था, 500 प्लस दिस वन 600, राइट? तो ये वाला क्या होगा, 600 होगा. तो मुझे ग्रेटर चाहिए ना, तो ग्रेटर चाहिए तो क्या होगा, ग्रेटर चाहिए तो मुझे इस वाले सबएरे पे जाना पड़ेगा, राइट वाले पे, है ना? अब राइट वाले पे जाना है तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे मिडल पे जाएंगे और इसके मिडल पे जाएंगे, तो क्या हो गया, मान लीजिए कि ये इसका मिडल आ गया.
तो इस पे क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये वाला उठा लिया और इसका मिडल वाला एलिमेंट उनको ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, लॉग एन टाइम में पॉसिबल हो सकता है ना। सो इट इज़ पॉसिबल इन ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम विद बाइनरी सर्च, राइट। लीनियर सर्च से ये वाला पॉसिबल हो सकता है, बाइनरी सर्च की हेल्प से क्या हो सकता है, वी कैन फाइंड आउट इन order of log n time. Now last question, can we find out in order of one time? Yes, it is also possible. How it is possible? So हमने क्या किया, तो लास्ट के दो एलिमेंट को एक्सेस कर लिया, बिकॉज array is what, sorted array, already mentioned that array is sorted. If array is sorted, will access the element j and j minus 1, right, will access the element j and j minus 1, और डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं क्या, यस, एरे में क्या किसी एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है, जे या फिर जे माइनस वन को एक्सेस किया जा सकता है क्या, यस, विद द हेल्प ऑफ बेस एड्रेस, बेस एड्रेस की हेल्प से किया जा सकता है, इट इज़ पॉसिबल। तो बेस एड्रेस की हेल्प से मैं डायरेक्टली कहाँ पे जा सकता हूँ, जे पे जा सकता हूँ, जे पे वैल्यू क्या है, दैट इज़ 900, ओके, और उसके बाद जे माइनस वन पे वैल्यू क्या है, दैट इज़ 800, राइट। इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 900 प्लस 800 एंड दैट इज ग्रेटर देन 1000, राइट। तो इन दोनों एलिमेंट से तो बड़ा कोई हो नहीं सकता, बिकॉज सॉर्टेड एरे है। तो फाइनली क्या कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन ऑर्डर ऑफ वन टाइम, राइट। तो हमें ये नहीं बताना है कि ऑर्डर ऑफ एन, मिनिमम कम से कम कितना टाइम लगेगा, कम से कम वाला बताना है, ज़्यादा में तो कर ही देंगे सॉल्व, है ना, ज़्यादा में तो सॉल्व कर ही सकते हैं, हमें क्या देखना है, कम से कम कितने टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। सो वी कैन सॉल्व इन द ऑर्डर ऑफ वन टाइम, दैट विल बी द इफेक्टिव एल्गोरिदम, है ना। अगर कम टाइम में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वो एल्गोरिदम ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। सो फाइनली वी कैन सॉल्व दिस वन इन ऑर्डर ऑफ वन टाइम। नाउ टेल मी, इट इज क्लियर और नॉट। Okay, and second question, what will happen if array is not sorted? If array is not sorted, in that case, how much time it will take? If array is not sorted, in that case, how much time it will take? Order of n time. Oh, order of one time में भी कर दिया. How it is possible in order of one time? ओके, फर्स्ट टाइम चेक करने में ही वो एलिमेंट मिल जाए। वी आर टेलिंग अबाउट द बेस्ट केस, है ना। तो ये पिंकी तूने बेस्ट केस बता दिया, बट वी आर नॉट लुकिंग फॉर द बेस्ट केस, हम बेस्ट एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर द बेस्ट एल्गोरिदम एंड वर्स्ट केस, ठीक है ना।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी बतानी होती है? वर्स्ट केस वाली बतानी होती है। और एल्गोरिदम कौन सा बताना होता है? दैट इज बेस्ट। ठीक है ना? तो एल्गोरिदम हमें बेस्ट बताना है कि कौन से वाला एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए उसकी? वर्स्ट टाइम में इतना टाइम लेगा। बट ये तो बेस्ट टाइम, बेस्ट केस में बता रहे हैं ना, वर्स्ट केस में कितना लेगा वो हमें बताना है। यस मुकेश, ऑर्डर ऑफ एन टाइम में कैसे कर देंगे? हाउ इट इज पॉसिबल? ओके, घर से ट्राई करना, सोचना इसके बारे में कितना टाइम में। आई थिंक ऑर्डर ऑफ एन टाइम में भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, सो जस्ट थिंक अबाउट दिस वन। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, here input is, there is a sorted array of n element, a sorted array, sorted array of n elements, right? A sorted array of n elements, and output is what? Output, find two elements a and b, find two element, find two element, two element a and b, a and b, such that, such such that a plus b equal to 1000, a plus b that is equal to 1000, right? A plus b that is equal to 1000. What will be the time complexity in this case? Order of 1 again. How it is order of 1? Pinky saying it is order of n.
ओके, ऑर्डर ऑफ एन टाइम में कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? कैन यू टेल मी? Assume that options are given as option A order of n square, option B it is order of n log n time, and option C it is order of n time, and option D it is order of 1 time. Okay, option D is order of 1 time. So कितना टाइम में सॉल्व कर पाएंगे? So we are looking for the best algorithm and worst time complexity. Okay, then write down one more question. घर से try करना. Write down one more question. It is input is हाँ, you can take that one that array. वैसे तो जर्नलाइज करना होता है, बट काउंटर एग्जाम्पल के लिए वो वाला एरे ले सकते हैं, राइट? सो इनपुट इज a sorted array array sorted array of n distinct element, right? N distinct element having negative values, 0 positive values, right? Having negative, 0 and positive integers, right? Negative, 0 and positive integers, यानी कि वैल्यूज कुछ -2, -1, -50 लाइक दैट, 0, 1, 2, 4, इस तरह की वैल्यूज होंगी वहाँ पे एरे में, है ना? और फाइंड क्या करना है? आउटपुट इज व्हाट? फाइंड द एलिमेंट ए ऑफ आई. फाइंड एलिमेंट ए ऑफ आई. फाइंड एलिमेंट ए ऑफ आई सच दैट a of I इक्वल टू I. ठीक है, a of I इक्वल टू I. ये दोनों क्वेश्चन घर से ट्राई करना.